children, how are you all? I'm sure you all are doing good. Let's start today's chapter, Thunder, Lightning and Earthquakes. Introduction. In the previous classes, you learned about water cycle, rain, flood, cyclone and thunderstorm. Now you will learn about lightning, thunder and lightning accompanied by rain are usually produced in a thunderstorm. These thunderstorms develop from cumulonimbus clouds. These clouds form when there is a rapid upward rush of warm air from very hot areas on the ground and a rapid downward movement of cool air around the warm air. The result is an explosive buildup of dense storm clouds that may reach altitudes of 10 to 15 kilometers. To understand lightning and these happenings, we have to understand the phenomenon of electric charges and how objects are charged and discharged. प्रीवियस क्लासेस में आप लोग रेन, फ्लड, साइक्लोन, थंडरस्टॉर्म के बारे में पढ़ के आए थे. अब इस चैप्टर में, इस क्लास में हम लाइटनिंग के बारे में पढ़ेंगे. ओके जैसे आपकी पता है लाइटनिंग एंड थंडर होता है, उसके बाद आपका रेन आती है, राइट. यूजुअली जो आपका प्रोड्यूस होती है थंडरस्टॉर्म में. ओके lightning is caused by the buildup of negative charge at the bottom of the thunder cloud. That means that the molecules that have extra electron compared to the ground. As the charge builds up, a point is reached at which the air can no longer block the passage of electricity. Then there is an enormous flash of electric energy between the cloud and the ground or from cloud to cloud, which is known as lightning. As the electric energy passes through a section, causing a violent outward movement the movement is so sharp and so sudden that it produces a booming sound called thunder. अब लाइटनिंग आपकी कैसी होती है? जब नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज का बिल्डअप हो जाता है थंडर क्लाउड के बॉटम में. इसका मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं किसमें? आपके क्लाउड्स में कंपैरेटिवली ग्राउंड, राइट. अब देखिए जो चार्ज बिल्डअप होता है तो एक ऐसा पॉइंट पहुंचता है कि एयर जो है इस पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को ब्लॉक नहीं कर पाती. फिर क्या होता है कि इनॉर्मस फ्लैश होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी का बिटवीन क्लाउड एंड द ग्राउंड या फिर क्लाउड और क्लाउड के बीच में, विच इज़ नोन एज लाइटनिंग. जब इलेक्ट्रिक एनर्जी आपकी पास होती है थ्रू अ सेक्शन, उसकी वजह से वायलेंट आउटवर्ड मूवमेंट होता है एयर का, और ये मूवमेंट इतना शार्प होता है और इतना सडन होता है कि एक ना बूमिंग साउंड को प्रोड्यूस करता है, जिसे हम कहते हैं थंडरस्टॉर्म. 10.1 थंडरस्टॉर्म्स. All thunderstorms form in similar conditions. When large pockets of moist air rise through cooler air, they usually develop in summer when a mass of warm, humid air lies above the heated ground. The heated air rises, expanding and cooling at the same time. For the formation of a thundercloud, the surrounding air must be cooler than the rising column of air. As the rising air cools, its vapor condenses into millions of tiny droplets to form a white, fluffy cloud at first and eventually a black, menacing thundercloud or cumulonimbus. अच्छा देखिए, जितने भी थंडर स्टॉर्म होते हैं इनकी कंडीशन सिमिलर होती है जब ये बनते हैं. तो जब लार्ज पॉकेट्स होते हैं मॉइस्ट एयर के, वो राइज होते हैं थ्रू कूलर एयर, और ये यूजुअली आपके समर में होते हैं जब मास ऑफ वार्म ह्यूमिड एयर जो है वो हीटेड ग्राउंड के ऊपर होता है, राइट. तो जो हीटेड एयर है वो आपको पता है वो राइज होती है, एक्सपेंड होगी एंड सेम टाइम पे वो कूल भी हो जाती है. तो थंडर क्लाउड के फॉर्मेशन के लिए जो सराउंडिंग की एयर है ना, दैट मस्ट बी कूलर देन द राइजिंग कॉलम ऑफ एयर. फिर जो राइजिंग एयर है वो कूल होती है, इसके वेपर कंडेंस हो जाते हैं, फिर छोटे किस में वो कन्वर्ट होता है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स होते हैं जो बनाते हैं आपके वाइट फ्लफी क्लाउड पहले, और उसके बाद इवेंचुअली वो बनते हैं एक ब्लैक मेसिक थंडर क्लाउड, या जिसे हम कहते हैं क्यूमुलोनिम्बस. ओके द वाटर ड्रॉपलेट्स टर्न टू आइस क्रिस्टल्स विच ग्रो अंटिल दे आर बिग इनफ टू फॉल. एज दे फॉल दे मेल्ट इनटू रेन ड्रॉप्स which are met by the upward current of air on the ground. Largest raindrops are heavy enough to force their way through the violent upflow of air traveling at speeds of 30 to 100 km per hour. As a result, the rain in thunderstorms always falls in large drops. Sometimes the ice crystals fall to the ground. This form of precipitation is called hail. The crystals are called hailstones. अच्छा अब देखिए, आपके इसके बाद जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं ना, वो आपके टर्न हो जाते हैं आइस क्रिस्टल्स में, फिर वो ग्रो करते हैं जब तक कि वो इतने बड़े ना हो जाएं कि वो गिरना शुरू करें. जब वो फॉल करते हैं तो वो फिर मेल्ट हो जाते हैं रेन ड्रॉप्स में, फिर विच आर मेट बाय द अपवर्ड करंट ऑफ एयर ऑन द ग्राउंड.
फिर जो लार्जेस्ट रेन ड्रॉप्स होती हैं वो काफ़ी हैवी होती हैं कि वो अपने टू फोर्स देयर वे थ्रू द वायलेंट फ्लो ऑफ एयर ट्रैवलिंग विथ जो आपकी कितने स्पीड पे करती है 30 से 100 किलोमीटर पर आवर। एज अ रिजल्ट जो रेन होती है ना थंडर स्टॉर्म में वो हमेशा बड़ी बड़ी ड्रॉप्स में गिरती हैं। कई बार जो आइस क्रिस्टल्स होते हैं वो ग्राउंड पे गिर जाते हैं, तो ये जो फॉर्म ऑफ प्रेसिपिटेशन होता है दैट इज हेल, एंड जो क्रिस्टल्स आपके होते हैं वो होते हैं आपके हेल स्टोन्स। The thunder and lightning produced in the thunderstorm are caused by electric discharges between the clouds or between a cloud and the ground. You can estimate the distance of a thunderstorm by counting the seconds between the flash and the number. Thunder. Every 3 seconds represent a kilometer. देखिए जो थंडर एंड लाइटनिंग प्रोड्यूस होती है ना कि थंडर स्टॉर्म में, दैट इज कॉज बाय इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस जो होते हैं आपके क्लाउड्स के बीच में या क्लाउड और ग्राउंड के बीच में। अच्छा, आप थंडर स्टॉर्म के डिस्टेंस को भी एस्टिमेट कर सकते हैं जो बाय काउंटिंग द नंबर ऑफ सेकेंड्स। फ्लैश और जो थंडर के बीच में आपका जो टाइम होता है ना उसको आप काउंट कर दीजिए। हर 3 सेकेंड्स रिप्रेजेंट करता है 1 किलोमीटर को। 10.2 वोल्टेज। Before we discuss lightning, we should learn something about voltage. It takes energy to move an object from one place to another. Even though electrons are very small, it still takes energy to move them. When you rub a balloon against your sleeve, you apply a force. This force moves the electrons from the cloth to the balloon. You are able to apply this force because you have energy. The energy you spend goes to the electrons which move. Energy is the push that makes electric charges move. A measure of the energy available to move electrons is called voltage. It is sometimes called potential difference. Voltage can be thought of as the push that makes electrons move. The higher the voltage, the more energy each electron carries. The more energy each electron carries, the more energy it can deliver and more work it can do. Voltage is measured in units called volts. The symbol for volt is the letter V. If you see the marking 10V, you know that means 10 volts. An instrument called a voltmeter is used to measure voltage. देखिए लाइटनिंग को डिस्कस करने से पहले हमें वोल्टेज के बारे में बात करेंगे। देखिए जब कोई भी ऑब्जेक्ट को आपको एक प्लेस से दूसरे में मूव कराना तो इट टेक्स एनर्जी, और आपके इलेक्ट्रॉन्स इवन दो ये बहुत ही स्मॉल होते हैं बट स्टिल टेक्स एनर्जी टू मूव देम। जब आप एक बलून को रब करते हैं अगेंस्ट योर स्लीव तो आप फोर्स अप्लाई करते हैं। फिर ये जो फोर्स है ये क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को मूव करता है फ्रॉम द क्लोथ टू द बलून। ओके, अब आपने ये फोर्स क्यों अप्लाई किया, बिकॉज यू हैव एनर्जी, है ना। तो जो एनर्जी आप स्पेंड कर रहे हैं इट गोज टू द इलेक्ट्रॉन विच मूव, एंड ये एनर्जी जो है वो पुश है, दैट मीन्स दैट मेक्स इलेक्ट्रिक चार्जेस मूव। तो जो मेजर होता है एनर्जी का which is available to move electrons, that is known as voltage. And जितना ज़्यादा वोल्टेज हायर होगा उतनी ही ज़्यादा एनर्जी हर इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा। जितनी एनर्जी हर इलेक्ट्रॉन कैरी करेगा तो द मोर एनर्जी इट कैन डिलीवर एंड मोर वर्क इट कैन डू, राइट। तो ये तो ऑब्वियस सी बात है। तो वोल्टेज को मेजर किया जाता है वोल्ट्स में, सिंबल वी से इसको डिनोट करते हैं, राइट। और जैसे कि आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था इसको मेजर किया जाता है वोल्ट मीटर से। 10.3 lightning. Electrons that move from one object to another and cause the buildup of charges at rest or static electricity eventually leave the object. Usually these extra electrons escape into the air. Sometimes they move on to another object. The charged object loses its static electricity and becomes neutral. This loss of static electricity as electric charges move off an object is called electric discharge. Sometimes the discharge is slow and quiet. Sometimes it is very rapid and accompanied by a shock, a spark of light or a crackle of noise. One of the most dramatic examples of the discharge of static electricity is lightning. Lightning is simply a large spark of electricity, a current flowing between a cloud and the earth, between cloud or within a cloud. देखिए इलेक्ट्रॉन जो मूव करते हैं एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, दे कॉज द बिल्ड ऑफ चार्जेस या तो रेस्ट पे या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, एंड इवेंचुअली ऑब्जेक्ट को लीव करते हैं। तो यूजुअली जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना ये आपके एस्केप कहाँ करते हैं, एयर में। कई बार ये आपके मूव कर जाते हैं दूसरे ऑब्जेक्ट में,
तो जो चार्ज ऑब्जेक्ट होता है वो अपनी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को लूज करता है और वो बन जाता है न्यूट्रल। तो ये जो लॉस होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का एज इलेक्ट्रिक चार्ज, ये मूव ऑफ करता है एक ऑब्जेक्ट को, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज। कई बार ये जो डिस्चार्ज होता है ना बहुत ही स्लो एंड क्वाइट होता है, कई बार ये बहुत रैपिड होता है और इसमें विच इज़ अकम्पनीड बाय अ शॉक, अ स्पार्क ऑफ लाइट, या फिर एक क्रैकल होता है, क्रैकल ऑफ नॉइस। तो जो एक एग्जांपल्स आपका ये जो डिस्चार्ज होता है जिसमें स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी का, ये है लाइटनिंग। लाइटनिंग एक्चुअली सिंपली आपका क्या है, स्पार्क ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इसमें करंट फ्लो करता है क्लाउड के बीच में और अर्थ के बीच में, क्लाउड एंड अर्थ के बीच में, या फिर क्लाउड्स के बीच में, या विद इन अ क्लाउड, राइट। थंडर एंड लाइटनिंग। Now let us study what exactly happens during lightning. Lightning is an electric discharge that moves through the clouds in a thunderstorm. You see it in the form of a bright flash or light. A thundercloud in the sky has many frozen droplets of water in the form of small pieces of ice. When wind blows, the frozen droplets collide with each other and become electrically charged by friction. This gives rise to a whole cloud filled up with electrical charges. अच्छा देखिए एग्जैक्टली होता क्या है लाइटनिंग के दौरान। लाइटनिंग एक आपका इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज है जो कि आपका मूव करता है थ्रू द क्लाउड्स इन द थंडरस्टॉर्म। अच्छा ये आपको नज़र आता है, लाइट एक फ्लैश नज़र आती है आपको ना लाइट की, उसके रूप में आपको नज़र आता है। थंडर क्लाउड जो होता है स्काई में, इसमें बहुत सारे ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर होते हैं, फ्रोजन छोटे छोटे पीसेस ऑफ आइस के फॉर्म में। तो जब विंड ब्लो करती है तो जो फ्रोजन ड्रॉपलेट्स है ना एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं एंड देन दे बिकम इलेक्ट्रिकली चार्ज बाय फ्रिक्शन, जिससे क्या होता है कि पूरा का जो पूरा क्लाउड है वो फिल्ड अप हो जाता है इलेक्ट्रिकल चार्जेस से। Generally speaking, the positive charges form at the top of the cloud and the negative charges form near the lower edges of the cloud. A positive charge area builds up below the cloud on the ground due to friction with wind and rain, and there is accumulation of positive charges near the ground and on the tree tops. If there are enough positive electric charges on one object or material and enough negative charges on the surface of other object, the attraction between the charges may be large enough to cause electrons to jump the air gap between the objects. अच्छा अब क्या होता है देखिए, जनरली जो पॉजिटिव चार्ज होता है ना वो क्लाउड के टॉप पे होता है, मीन्स दिस इज योर क्लाउड। अब ये पॉजिटिव चार्जेस आपके टॉप पे बनते हैं, जबकि नेगेटिव चार्जेस आपके होते हैं क्लाउड के जो लोअर एजेस होते हैं, यहाँ पे बिल्डअप हो जाते हैं आपके। ओके तो जब पॉजिटिव चार्ज आपके बिल्डअप होते हैं बिलो द क्लाउड यानी कि ऑन द ग्राउंड बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन विद विंड एंड रेन, तो फिर क्या हो जाता है, एक्यूमुलेशन हो जाता है पॉजिटिव चार्जेस का ग्राउंड के पास या फिर जो आपकी ट्री का टॉप होता है। ओके अब अगर इनफ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं उस ऑब्जेक्ट पे या मटेरियल पे और इनफ नेगेटिव चार्जेस है आपके दूसरे ऑब्जेक्ट के सरफेस पे, तो अट्रैक्शन होगा है ना, वो इतना ज़्यादा होगा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं आपके वो जंप कर जाएंगे इस एयर गैप को इन ऑब्जेक्ट्स के बीच में, राइट। मीन्स देखिए यहाँ पे आपके नेगेटिव चार्ज हैं, आपका यहाँ पे कोई ट्री ड्रॉप है या ग्राउंड है, इसमें आपका क्या होगा पॉजिटिव चार्ज, देन देयर विल बी अट्रैक्शन, राइट। Once a few electrons begin to move across the gap, they heat up the air so that more and more electrons jump across the gap. This heats the air even more. It all happens very fast and the air gets so hot that it glows for a short time. This causes a spark and you see it as lightning. This is also the same reason that you see sparks when you pull out a nylon cloth in the dark. Most lightning travels from cloud to cloud or from cloud to ground. Though air is a bad conductor of charge, in this case air conducts charge as this amount is huge. We can infer that sometimes bad conductor can conduct charges under special condition. देखिए एक बार कुछ इलेक्ट्रॉन जो है उन्होंने मूव करना स्टार्ट कर दिया गैप के अक्रॉस, तो फिर क्या करते हैं वो हीट अप करते हैं एयर को, जिससे कि और ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स जंप कर सके। फिर इससे क्या होता है एयर और ज़्यादा हीट अप हो जाती है और ये इतना फास्ट होता है कि एयर जो है इतनी हॉट हो जाती है कि ये थोड़े टाइम के लिए ना ग्लो करती है, तो इसकी वजह से स्पार्क होता है जिसे हम एज लाइटनिंग देखते हैं। ज़्यादा जो लाइटनिंग होती है आपकी वो ट्रैवल करती है क्लाउड टू क्लाउड या फ्रॉम क्लाउड टू ग्राउंड। अब एयर आपका बैड कंडक्टर ऑफ चार्ज है, इस केस में एयर जो है चार्ज को कंडक्ट करती है क्योंकि ये अमाउंट ह्यूज होता है, ठीक है। और कई बार देखते हैं कि जो बैड कंडक्टर है वो चार्जेस को कंडक्ट करते हैं कुछ स्पेशल कंडीशंस में।
thunder happens together with lightning or just after lightning. Lightning bolts are extremely hot with temperature being very high. The lightning bolt suddenly heats the air around it to such an extent that the air instantly expands, sending out a vibration or shock wave. We hear this as an explosion of sound and call it thunder. Depending on wind direction and temperature, you may hear thunder from up to 20 kilometers. If you are near a place where lightning strikes, you will hear thunder as a sharp crack. When lightning is far away, thunder sounds more like a low rumble as the sound waves reflect an echo of hillsides, buildings, and trees. Thunder is heard much after lightning is seen because the speed of sound is much less than the speed of light. अच्छा, अब आपका जो थंडर होता है वो लाइटनिंग के साथ होता है या लाइटनिंग की जस्ट आफ्टर होता है. तो लाइटनिंग बॉल्ट्स आपके बहुत ही हॉट होते हैं जिससे कि टेम्परेचर बहुत हाई हो जाता है. तो लाइटनिंग बॉल्ट सडनली एयर को हीट अप कर देते हैं इस एक्सटेंट तक कि जो एयर है वो इंस्टेंटली एक्सपेंड हो जाती है जिससे कि वो वाइब्रेशन या शॉक वेव सेंड करना शुरू कर देती है. तो हम ये जो एक्सप्लोजन हमें साउंड का सुनाई देता है ना, वी कॉल इट थंडर. अब डिपेंडिंग ऑन विंड डायरेक्शन और टेम्परेचर आप थंडर को सुन सकते हैं आप 20 किलोमीटर्स तक. ठीक है, अगर आप जहाँ पे लाइटनिंग स्ट्राइक हो रही है उसके पास है तो आपको थंडर एज अ शार्प क्रैक सुनाई देगा. ओके, और अगर लाइटनिंग दूर है तो जो थंडर स्टॉर्म है वो थोड़े से आपके कम होगी, मतलब लो रंबल होगी. ओके, एंड थंडर जो है आपको पता है लाइटनिंग थंडर जो है लाइटनिंग के बाद आपको सुनाई देता है क्योंकि जो स्पीड है साउंड की इज़ वेरी लेस, इज़ मच लेस देन दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट. लाइटनिंग फ्रॉम क्लाउड टू अर्थ. During a storm, particles contained in clouds are moved about by the wind. Charges become separated and there is a build-up of positive and negative charges. If a negatively charged cloud forms near the surface of the earth, objects on the earth become electrically charged by induction. Soon, electrons jump from the cloud to the earth. The result of this transfer of electrons is a giant spark called lightning. Lightning from cloud to earth is known as fogged lightning. अच्छा, स्टॉर्म के दौरान जो पार्टिकल्स होते हैं ना क्लाउड्स में वो मूव करते हैं बाय द विंड. चार्जेस सेपरेट हो जाते हैं और फिर बिल्डअप हो जाता है पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस का. अगर एक नेगेटिवली चार्ज क्लाउड आपका बनता है अर्थ सरफेस के पास तो जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं ना अर्थ में वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाता है बाय इंडक्शन. फिर इलेक्ट्रॉन्स जंप करते हैं क्लाउड टू अर्थ. तो जो रिजल्ट से क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है इलेक्ट्रॉन्स का, एक जाइंट स्पार्किंग होती है विच इज़ लाइटनिंग. एंड लाइटनिंग जो होती है आपकी फ्रॉम क्लाउड टू अर्थ उसे कहा जाता है फॉग्ड लाइटनिंग. नेक्स्ट, लाइटनिंग फ्रॉम क्लाउड टू क्लाउड. Lightning can also occur as electrons jump from cloud to cloud. As electrons jump through the air, intense light and heat are produced. The light is the bolt of lightning you see. The heat causes the air to expand suddenly. The rapid expansion of the air is the thunder you hear. Lightning contains dangerously high amounts of electric energy. An average lightning bolt transfers 6 billion electrons between a cloud and the earth. Remember, although the flow of current in a lightning flash is huge, the actual quantity of electricity is small because the current flows only for a fraction of a second. But it can cause serious damage, setting trees and houses on fire and electrocuting and even killing living beings. देखिए, आपकी लाइटनिंग कब होती है जब इलेक्ट्रॉन आपके क्लाउड टू क्लाउड जंप करते हैं. ओके, तो जब इलेक्ट्रॉन जंप करते हैं ना थ्रू एयर, इंटेंस लाइट हीट प्रोड्यूस होती है और ये जो लाइट होती है ये आपकी थी बोल्ट ऑफ लाइटनिंग जो आप देखते हैं. फिर इसकी वजह से एयर जो है हीट की वजह से एयर फिर एक्सपेंड हो जाती है, सडनली हो जाती है. तो जो रैपिड एक्सपेंशन होता है एयर का वो होता है थंडर जो आपको सुनाई देता है. लाइटनिंग बहुत डेंजरस, इसमें डेंजरसली हाई अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी होता है. बट जो एवरेज लाइटनिंग बोल्ट होता है ना वो ट्रांसफ़र कितना करता है, 6 बिलियन इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन क्लाउड एंड अर्थ. देखिए कितना ज़्यादा है. हालांकि देखिए जो फ्लो ऑफ करंट है ना लाइटनिंग में फ्लैश में बहुत ज़्यादा होता है, ह्यूज होता है. बट जो एक्चुअल क्वांटिटी होती है इलेक्ट्रिसिटी की वो बहुत ही थोड़ी होती है क्योंकि जो करंट है ना वो फ्लो करता है ओनली फॉर अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड. बट इसकी वजह से सीरियस डैमेज हो सकता है. कई बार बिल्डिंग्स में फायर लग जाती है, कई बार जो पेड़ होते हैं जो काफ़ी टॉल होते हैं आग लग जाती है, कई बार लिविंग जो बींग्स होते हैं दे आर बीइंग किल्ड. शीट लाइटनिंग.
Lightning within a cloud is known as sheet lightning, which occurs between the upper and lower layers which have different charges. Sheet lightning आपकी clouds के बीच में होती है, जो आपकी upper and lower layers के बीच में होती है, जिनके different charges होते हैं. Effects and precautionary measures. अब देखिए इसके lightning के effect क्या है, आप क्या precautionary measures ले सकते हैं. Lightning is an electrical discharge. It is dangerous, and so one must be aware of the precautions. No open place is safe. One should seek shelter inside a house or a large building. Stay away from windows and metal objects like a phone, wire fences and clothes line. देखिए ओपन प्लेस ना लाइटनिंग के टाइप पे बिल्कुल भी सेफ नहीं होता है, तो आप किसी भी बड़ी बिल्डिंग या घर के अंदर ही शेल्टर लें. विंडोज से दूर रहे, मेटल ऑब्जेक्ट से दूर रहे, जैसे कि फ़ोन है, वायर फेंस है या क्लोथ लाइन्स है. राइट. गेट अवे फ्रॉम वाटर. डू नॉट वॉश और हैव bath during lightning. Stay low to the ground and squat on your feet. Do not fly kites. Do not carry an umbrella with a metal rod. Do not stand under a tree. Avoid riding a bicycle. Unplug electric appliances like computer, TV, AC and converter. देखिए पानी में ना जाए और लाइटनिंग के टाइम पे नहाए भी नहीं, ना ही वॉश करें. लो ग्राउंड से आप दूर रहें, और अगर आप ग्राउंड पे हैं तो आप स्क्वाट कर सकते हैं अपने फीट पे. पतंग ना उड़ाएं, एक अम्ब्रेला कैरी ना करें जिसका मेटल रॉड हो, ट्री के नीचे बिल्कुल ना खड़े हो, बाइसिकल नहीं राइड कर रही है इस टाइम पे, और जितने भी आपके इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं ना, जैसे कि कंप्यूटर, एसी है, इनको आप अनप्लग कर लें. 10.4 earthquake. What is an earthquake? An earthquake is the shaking and trembling that results from the sudden movement of part of the earth's crust. When you throw a pebble into a pond, waves move outward in all directions. In a similar manner, when rocks in the earth's crust break, earthquake waves travel through the earth in all directions. The ground shakes and trembles. During a severe earthquake, the ground may rise and fall like waves in the ocean. The motion of the ground causes buildings, trees and telephone poles to sway and fall. Loud noises may sometimes be heard coming from deep within the earth. देखिए earthquake के बारे में आपको पता है क्या होता है, इसमें शेकिंग होता है, अर्थ ट्रम्बलिंग होता है ना, जिसकी वजह से सडन मूवमेंट होते हैं अर्थ के क्रस्ट के कुछ पार्ट में. जैसे आप पेबल को फेंकते हैं ना पानी में, तो कैसे वो रिपल्स उसमें बनते हैं, है ना, वेव्स जो है आउटवर्ड मूव करती हैं ऑल डायरेक्शंस में. तो ऐसे ही जो रॉक्स होती है ना अर्थ क्रस्ट की, वो ब्रेक हो जाती है, फिर जो अर्थ के वेव्स होती है वो ट्रैवल करती हैं अर्थ में ऑल डायरेक्शंस में. ओके. कई बार जो सीवियर अर्थक्वेक होता है तो उसकी वजह से क्या होता है, काफ़ी नुकसान होता है. तो जो ग्राउंड होता है ना वो राइज होता है and then it falls like waves in the ocean. जो मोशन होते हैं ग्राउंड के, उसकी वजह से बिल्डिंग, ट्रीज, टेलीफोन पोल्स, ये सारे गिर जाते हैं. राइट. कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक. अब ये अर्थक्वेक्स क्यों होते हैं? Number 1, minor earthquakes may be produced by volcanic eruptions, landslides or even by underground explosions caused by us humans. Number 2, major earthquakes occur along faults. They are due to stresses that build up along the fault for hundreds of years. Eventually, these stresses cause huge masses of rock inside the earth to move along the fault. The vibrations caused by the movement and fracturing of the crystal rock are transmitted through the earth and are called earthquakes. देखिए जो माइनर अर्थक्वेक्स होते हैं ना, कई बार वो प्रोड्यूस होते हैं वॉल्केनिक इरप्शंस की वजह से, लैंडस्लाइड की वजह से, कई बार अंडरग्राउंड एक्सप्लोजन होता है जो ह्यूमन ही करते हैं, और जो मेजर अर्थक्वेक्स होते हैं वो फॉल्ट्स के अलॉन्ग होते हैं. ये ऐसे क्यों होता है? बिकॉज ऑफ स्ट्रेसेस जो बिल्डअप हो जाता है आपका अलॉन्ग द फॉल्ट फॉर 100 of years. तो इवेंचुअली जो स्ट्रेसेस होते हैं वो क्या करते हैं कि इनकी वजह से जो ह्यूज मासेस होते हैं ना रॉक अर्थ के अंदर मूव करते हैं अलॉन्ग द फॉल्ट. तो वाइब्रेशन की वजह से, वाइब्रेशन होता है जब मूवमेंट होता है उस क्रिस्टल रॉक का या फ्रैक्चरिंग होता है, तो फिर ये ट्रांसमिट होते हैं अर्थ तक और इन्हें कहते हैं अर्थक्वेक. 10.6 एक्टिविटीज़ ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक. The following are the main activities that take place during an earthquake. Shock waves spread out in every direction from the point where the movement begins. This point is called the focus of the earthquake or its origin place. The shock waves first reach the epicenter, the place on the surface directly above the focus. This is the first point to be affected by an earthquake and suffers the greatest damage. Away from the epicenter, the vibrations are less strong. At the epicenter, surfaces
waves called L or long waves are set loose. They move along the surface of the earth with a twisting, churning motion. देखिए जो शॉक वेव्स होती हैं आपकी वो स्प्रेड हो जाती है हर डायरेक्शन में जहाँ से आपका मूवमेंट शुरू हुआ. तो इस पॉइंट को कहा जाता है फोकस ऑफ द अर्थ या फिर अर्थक्वेक या फिर उसका ओरिजिन प्लेस जहाँ से आपका अर्थक्वेक ओरिजिन हुआ है. तो शॉक वेव सबसे पहले पहुँचती है एपिसेंटर में. एपिसेंटर कौन सा प्लेस है? एपिसेंटर एक्चुअली आपका डायरेक्ट अबव होता है फोकस के. तो ये पहला पॉइंट होता है जो अर्थक्वेक से सफ़र करता है और सबसे ज़्यादा नुकसान एपिसेंटर पे ही होता है. एपिसेंटर में जो सरफेस वेव्स होती हैं उन्हें कहते हैं एल या लॉन्ग वेव्स. वो उनको दे आर सेट लूज. फिर ये मूव करती है अलॉन्ग द सरफेस ऑफ अर्थ एक ट्विस्टिंग चर्निंग मोशन में. Two kinds of earthquake waves are set loose at the earthquake focus and travel through the Earth's interior. These are P waves and S waves. अब दो तरह की earthquake waves होती हैं which are set loose at the earthquake focus और ये travel करती हैं through the Earth's interior. ये है आपकी P and S waves. P waves cause rock particles to vibrate back and forth in the direction that the waves are moving. Thus, the rock particles along the wave's path are pushed forward and pulled back at the wave's path. For this reason, P waves are sometimes called push-pull waves. P waves, like sound waves, can move through solids, liquids, and gases. S waves travel only about half as fast as P waves. They cause rock particles to vibrate at right angles to their path. They make particles along the path of an S wave shake from side to side. Sometimes S waves are called shear waves. S waves can travel only through solids. अब ये देखिए जो P waves होती है ना ये रॉक पार्टिकल्स को वाइब्रेट करती हैं बैक एंड फोर्थ इन द डायरेक्शन जहाँ पे आपके वेव्स मूव कर रही हैं. तो जो रॉक पार्टिकल्स होते हैं ना अलॉन्ग द वेव पाथ ये दे आर पुश्ड एंड फॉरवर्ड एंड पुल्ड बैक एज द वेव्स पास. तो इस रीज़न की वजह से जो P waves होती हैं वो कई बार क्या होती हैं पुश पुल वेव्स होती हैं. और P वेव्स साउंड वेव्स की तरह सॉलिड लिक्विड गैसेस तीनों मीडियम में ट्रैवल करती हैं या मूव करते हैं. राइट. S वेव जो है वो ट्रैवल करते हैं जितना P वेव करती है ना जितना फास्ट उसका अबाउट हाफ. तो ये रॉक पार्टिकल्स को वाइब्रेट करते हैं राइट एंगल्स में उनके पाथ में. फिर ये पार्टिकल्स को क्या करते हैं दे मेक पार्टिकल्स अलॉन्ग द पाथ ऑफ एन S वेव शेक करते हैं फ्रॉम साइड टू साइड. और कई बार जो होती है S वेव्स को शीर वेव्स भी कहा जाता है बट ये सिर्फ सॉलिड में ही ट्रैवल करते हैं. राइट. 10.7 इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक्स. The intensity or power of earthquake is measured on the Richter scale. The scale is based on the strength of the waves that set off the quake. Each larger unit on the Richter scale indicates an earthquake 10 times as strong as the previous one. So an earthquake that reads 2 on the scale is 10 times as powerful as a quake that reads 1. A quake that reads 3 is 100 times as powerful as a quake that reads 1 and so on. One of the most powerful earthquakes ever recorded was centered in Assam, India on June 2, 1897. All brick and stone buildings over an area of 78,000 square kilometers were leveled. Buildings in Calcutta, 320 kilometers away, were toppled. The Assam quake was equal to about 8.9 on the Richter scale. That would be almost 100 million times as strong as a quake that registered 1.0. देखिए अर्थक्वेक की जो इंटेंसिटी या पावर है उसको रिक्टर स्केल पे मेजर किया जाता है और इसमें कुछ यूनिट्स होती हैं और हर जो यूनिट होती है लार्जर यूनिट रिक्टर स्केल की वो इंडिकेट करती है अर्थक्वेक को 10 टाइम्स एज स्ट्रॉन्ग एज अ प्रीवियस वन. जैसे कि अर्थक्वेक पे रीडिंग आई है अर्थक्वेक स्केल पे रीडिंग आई है 2. ओके. तो ये आपका 10 टाइम्स पावरफुल होगा एज अ क्वेक दैट रीड्स 1. और अगर स्केल पे रीडिंग आती है 3 तो दैट इज 100 टाइम्स एज पावरफुल एज अ क्वेक दैट रीड्स 1. राइट. और सो ऑन. तो अब तक का जो मोस्ट पावरफुल अर्थक्वेक आया वो आया था असम में 1897 में जून 2 को. राइट. तो इसकी इंटेंसिटी थी 8.9 जो रिक्टर स्केल पे थी यानी कि ये ऑलमोस्ट 100 मिलियन टाइम्स स्ट्रॉन्ग था एज अ क्वेक दैट रजिस्टर्ड 1. 10.8 seismograph. An instrument called a seismograph is used to detect and measure earthquake waves.
As you can see in figure 10.7, there are 5 basic parts of a seismograph: a support, a heavy object that hangs from the support, a pen that makes the marks on a rotating drum, and a base that rests on the ground. When the waves in an earthquake make the ground vibrate, the base of the seismograph vibrates. The rotating drum attached to the base also vibrates next to the pen. The pen and the heavy weight do not move at all. So the motion of the rotating drum moving back and forth next to the pen causes lines to appear on the drum. The longer the lines, the more powerful is the earthquake. There are recording stations all over the world where all seismic activity from major earthquakes to the faintest earth tremor is continuously recorded. They make use of seismographs. अब देखिए, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि मेजर किया जाता है अर्थक्वेक की वेव्स को डिटेक्ट किया जाता है, दैट इज नोन एज सिस्मोग्राफ. सी दिस इज द पिक्चर ऑफ सिस्मोग्राफ. इस पे आपके 5 बेसिक पार्ट्स होते हैं सिस्मोग्राफ के, राइट. तो जो वेव्स होती है अर्थक्वेक की वो ग्राउंड को वाइब्रेट करती हैं, तो जो बेस होता है ना सिस्मोग्राफ का वो वाइब्रेट करता है. फिर जो रोटेटिंग ड्रम अटैच होता है बेस के साथ वो भी वाइब्रेट करता है नेक्स्ट टू द पेन. फिर जो पेन और हैवी वेट होता है वो मूव नहीं करते, तो जो मोशन होता है रोटेटिंग ड्रम का वो मूव करता है बैक एंड फोर्थ नेक्स्ट टू द पेन, जिसकी वजह से लाइंस अपीयर होती हैं ड्रम में. जितनी लंबी लाइंस होंगी इसका मतलब जो पावर ज़्यादा पावरफुल होगा आपको अर्थक्वेक. और ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकॉर्डिंग स्टेशंस होते हैं जहाँ पे ये सिस्मिक एक्टिविटी को रिकॉर्ड किया जाता है. आपकी मेजर अर्थक्वेक से लेके जो फेंटेस्ट अर्थ ट्रेमर होता है वो ओके जो कंटिन्यूसली रिकॉर्ड होते हैं, और फिर दे मेक यूज़ ऑफ क्या करते हैं सिस्मोग्राफ्स के थ्रू ही करते हैं. 10.9 effects of earthquake. Earthquakes cause heavy damage to buildings. They also take a toll of human and animal life. Besides, they cause flash floods and tsunamis. Effects on building. During an earthquake, as the vibrations and waves continue to move through the earth, buildings on the earth's surface are set in motion. When the waves strike, the ground begins to move backward and forward along the same line. The lower part of the building on the earth's surface immediately moves with the ground. The upper portion, however, initially remains at rest. Thus, the building is stretched out of shape. Gradually, the upper portion tries to catch up with the bottom, but as it does so, the earth moves in the other direction, causing a whiplash effect. The vibration can cause a structural failure in the building itself, so to an adjacent building having different response, the upper floor or roof to collapse. नहीं गलत बोल दिया मैंने, दूसरी लाइन पे आ गई मैं. The vibration से बोलती हूँ, ठीक है. The vibration can cause a structural failure in the building itself or to an adjacent building having different response characteristics. The walls of buildings without adequate lateral bracing frequently fall outward, leaving the upper floor or roof to collapse into the inside of the structure. Taller buildings also tend to shake longer than the short buildings, which can make them relatively more susceptible to damage. देखिए जब earthquake आता है तो उसकी वजह से बहुत सारे नुकसान होते हैं. बिल्डिंग्स को होता है ओके और प्रॉपर्टी को नुकसान होता है, आपके ह्यूमन बीइंग्स एनिमल्स सबको नुकसान होता है. इसकी वजह से कई बार फ्लैश फ्लड और सुनामी भी आते हैं. तो देखिए बिल्डिंग्स पे क्या इफेक्ट होता है, जैसे कि अर्थक्वेक के दौरान वाइब्रेशंस और वेव्स होती हैं वो कंटिन्यूसली मूव करती हैं थ्रू अर्थ बिल्डिंग एंड अर्थ सर्फेस. वो आपके दे आर सेट इन मोशन. तो जो वेव्स स्ट्राइक करती है तो ग्राउंड जो है मूव करना शुरू करता है बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड सेम लाइन पे. तो जो लोअर पार्ट होता है बिल्डिंग का अर्थ सर्फेस का वो इमीडिएटली मूव करता है ग्राउंड के साथ, लेकिन जो अपर पोर्शन होता है वो रेस्ट पे रहता है. तो इससे जो बिल्डिंग है वो स्ट्रेच्ड हो जाती है, स्ट्रेच आउट ऑफ शेप. फिर जो ग्रेजुअली अपर पोर्शन होता है वो ट्राई करता है कि वो कैचअप करे इस बॉटम के साथ, पर जैसे ही वो करता है अर्थ जो है वो दूसरी डायरेक्शन में मूव कर जाती है, जिससे कि एक whiplash इफेक्ट होता है. तो वाइब्रेशन की वजह वाइब्रेशन से जो स्ट्रक्चरल फेलियर होता है बिल्डिंग का वो हो सकता है. और इसके बाद अलावा जैसे जो वॉल्स होती है बिल्डिंग्स की जिसमें आपके एडिक्वेट लेटरल ब्रेसिंग नहीं होते वो फ्रीक्वेंटली आउटवर्ड फॉल करती हैं, जिससे कि अपर फ्लोर और जो रूफ होता है आपने देखा होगा वो कोलैप्स हो जाती है स्ट्रक्चर के अंदर ही. एंड जो टॉलर बिल्डिंग्स होती हैं वो लंबे समय तक शेक करती है कंपैरेटिवली शॉर्ट बिल्डिंग्स. ओके तो इसीलिए जो टॉलर बिल्डिंग्स होती हैं वो ज़्यादा ससेप्टेबल होती है टू डैमेज.
Loss of life. Thousands of people lost their life every year due to earthquakes. The earthquake in Bihar in 1934 killed more than 10,000 people. The 2001 earthquake in Gujarat killed over 19,727 people. The earthquake in Kashmir in 2005 took a heavy toll of human lives as around 80,000 people lost their lives. Flash floods. Sometimes, under the impact of severe earthquakes, rivers change their course, causing flash floods. Moreover, dams and embankments develop fissures, which make flash floods. अब देखिए अर्थक्वेक की वजह से बहुत लोगों की जानें चली जाती हैं, जैसे कि आपका बिहार में आया था अर्थक्वेक 1934, 2001 में गुजरात में आया था, 2005 में आपका कश्मीर में आया था, तो काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन लाइफ्स गंवानी पड़ी थी. कई बार सीवियर अर्थक्वेक के इम्पैक्ट के अंडर जो रिवर्स अपना कोर्स चेंज कर देती है, जिसकी वजह से फ्लैश फ्लड्स होते हैं, राइट. कई बार डैम्स और एम्बैंकमेंट्स में फिशर्स डेवलप हो जाती हैं, जिनकी वजह से भी फ्लैश फ्लड्स होता है. नेक्स्ट, सुनामीज. Earthquakes occurring underwater produce dangerous ocean waves called tsunamis. These waves spread from the shock center like ripples from a stone dropped in water, but the ripples spread out at speeds of up to 720 kilometers an hour. The average distance between them is about 500 kilometers. At sea, these waves are only about a meter high. As the waves are so low and so far apart, they are hardly noticeable. But as they approach the shallow water offshore, these waves increase rapidly in height. Tsunamis have tremendous energy and may reach heights of more than 40 meters as they crash onto a beach. Between such high waves, there is a deep trough or depression in the sea level that may create a false sense of calm. This calm proves fatal as it does not give time to people to run away from the speeding tsunami wave. The recent tsunami was caused by a massive earthquake off the coast of Indonesia on December 26, 2004. It killed 230,000 of people in 14 countries, including Indonesia, Burma, Thailand, India and Sri Lanka. देखिए earthquake जैसे आपके अंडर वाटर आते हैं तो उसे हम कहते हैं सुनामी. फिर क्या होता है कि अंडर वाटर जो है डेंजरस ओशन वेव प्रोड्यूस करते हैं, तो ये वेव्स आपके स्प्रेड हो जाती है शॉक सेंटर से, लाइक रिपल्स जो आपने स्टोन जैसे आप ड्रॉप करते हैं वाटर में ना, ऐसी. तो जो रिपल्स होते हैं ये स्प्रेड आउट होते हैं. स्पीड कितनी स्पीड होती है इनकी? 720 किलोमीटर एन आवर. तो एवरेज डिस्टेंस जो होता है वो होता है 500 किलोमीटर. तो ये वेव्स जो होती हैं कुछ ही मीटर हाई होती है, और जैसे आपकी वेव्स लो हो जाती हैं तो ये फिर नोटिस भी नहीं होती है. बट जैसे जैसे ये अप्रोच करती है शैलो वाटर ऑफशोर में, तो जो वेव्स होती है ना इंक्रीज हो जाती है रैपिडली इन हाइट. तो सुनामी की वजह से भी ना बहुत ज़्यादा नुकसान होता है. जैसे कि 2004 में एक सुनामी आई थी और इसमें 14 कंट्रीज़ आपकी इंक्लूडेड थी, जिसमें 2,30,000 लोग मारे गए थे. 10.10 प्रोटेक्टिव मेजर्स. The primary object of earthquake-resistant design is to prevent collapse during earthquakes, thus minimizing the risk of death or injury to people in or around those buildings. There are certain features which, if taken into consideration at the stage of architectural planning and structural design of buildings, their performance during earthquakes will be appreciably improved. Some such features are as follows. Building configuration. The building should have a simple rectangular plan. Building का एक simple rectangular plan होना चाहिए. Long walls should be supported by reinforced concrete columns or buttresses. जो लंबी walls होती है उनको support देना चाहिए by reinforced concrete. Large buildings having plans with shapes like T, L, U and X should preferably be separated into rectangular blocks by providing separation sections in appropriate places. A separation section is a gap of specified width between adjacent buildings or part of the same building, either left covered or uncovered to permit movement in order to avoid falling due to earthquake. अच्छा देखिए, जो लार्ज बिल्डिंग्स होती है ना उनमें प्लान्स होते हैं, मतलब शेप्स होती है L, T, U फिर X, जिससे कि क्या होता है कि जो इनको सेपरेट किया जाता है इंटू रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स और इनके बीच में सेपरेशन सेक्शंस होते हैं अप्रोप्रिएट प्लेसेस पे. तो सेपरेशन सेक्शन क्या होता है? गैप होता है विच इज़ स्पेसिफाइड विथ एडजेसेंट बिल्डिंग्स और जो पार्ट है सेम बिल्डिंग के बीच का.
तो या तो इसको कवर्ड छोड़ दिया जाता है या फिर अनकवर्ड, जिससे कि जो मूवमेंट होगी अर्थक्वेक के दौरान तो उससे फिर फॉलिंग नहीं होगा. फाउंडेशन. Buildings which are structurally strong to withstand earthquakes sometimes fall due to inadequate foundation design. Tilting, cracking, and failure of superstructure may result from soil liquefaction and differential settlements of footings. Certain types of foundations are more susceptible to damage others. For example, isolated footings of columns are likely to be subjected to differential settlement, particularly where the supporting ground consists of different or soft types of soil. The depth of the footing in the soil should go below the zone of the deep freezing in cold countries and below the level of shrinkage cracks in clay soils. In firm soil conditions, any type of footing can be used. It should have a firm base of lime or cement concrete with the requisite width over which construction of footing may start. In soft soil, it will be desirable to use a plinth band in all walls and where necessary to connect the individual column footings by means of plinth beams. देखिए, जो बिल्डिंग्स जो आपके स्ट्रक्चरली स्ट्रॉन्ग होते हैं वो अर्थक्वेक को विथस्टैंड कर लेते हैं. कई बार गिर जाते हैं क्योंकि उनका फाउंडेशन डिज़ाइन एडिक्वेट नहीं होता, इनएडिक्वेट होता है. तो जो टिल्टिंग, क्रैकिंग या जो फेलियर होता है सुपर स्ट्रक्चर का, इट रिजल्ट फ्रॉम सॉइल लिक्विफिकेशन या फिर जो डिफरेंट सेटलमेंट्स होते हैं फुटिंग्स के. तो कुछ सर्टेन टाइप ऑफ फाउंडेशंस होती हैं विच आर मोर ससेप्टेबल टू डैमेज अदर्स. जैसे कि जो आइसोलेटेड फुटिंग्स होती है कॉलम्स की, दे आर लाइकली सब्जेक्टेड टू डिफरेंशियल सेटलमेंट, पर्टिकुलरली उस जगह पे जहाँ पे जो सपोर्टिंग ग्राउंड होता है उसमें डिफरेंट या सॉफ्ट टाइप ऑफ सॉइल होती है. अब जो डेप्थ होती है फुटिंग की सॉइल की वो जाना चाहिए आपका बिलो द जोन ऑफ डीप फ्रीजिंग कोल्ड कंट्रीज में एंड बिलो द लेवल ऑफ श्रिंकेज क्रैक्स क्ले सॉइल्स में. फर्म सॉइल कंडीशंस में कोई भी टाइप की फुटिंग यूज़ की जा सकती है ना. इसका एक फर्म बेस होना चाहिए लाइम और आपके सीमेंट कंक्रीट का, जिसमें रिक्विजिट विड्थ होनी चाहिए जिसमें कंस्ट्रक्शन आपकी स्टार्ट हो सके. आपने देखा, यूजुअली देखा होगा कि फाउंडेशन लोग काफ़ी मजबूत बनाता है, राइट. और सॉफ्ट सॉइल में ये आपका क्या होगा, इट विल बी डिज़ायरेबल कि हम यहाँ पे प्लिंथ बैंड का यूज़ करें सारी वॉल्स में जहाँ पे नेसेसरी है, और फिर इंडिविजुअल कॉलम फुटिंग को हम कनेक्ट करें बाय मीन्स ऑफ प्लिंथ बीम्स, राइट. कंट्रोल ऑन opening in walls. Door and window openings in walls reduce their lateral load resistance and hence should preferably be small and more centrally located. Too many or large openings will make the wall vulnerable to collapse during earthquakes. The location of openings should not be too close to the edge of the wall. अच्छा, door and window जो opening होती है walls पे, ये क्या करती है, lateral load resistance को reduce कर देती है, इसीलिए preferably इनको छोटा रखना चाहिए और ये आपके सेंटर में लोकेटेड होनी चाहिए. अगर बहुत ज़्यादा या ओपनिंग्स हैं या बहुत बड़ी ओपनिंग्स हैं तो फिर क्या होगी, जो वॉल होगी ये वल्नरेबल होगी, मतलब ये जब भी अर्थक्वेक आएगा तो क्लैप्स हो सकती है. एंड जो ओपनिंग्स है, लोकेशन है ओपनिंग्स की, वो एज ऑफ द वॉल के पास भी नहीं होनी चाहिए, राइट. Key points. Lightning is simply a large spark of electricity, a current flowing between a cloud and the earth, between clouds or within a cloud. Lightning caused by the buildup of a negative electric charge at the bottom of a thundercloud. For the formation of a thunderstorm, the surrounding air must be cooler than the rising air. The rain in thunderstorm always falls in large drops. A measure of the energy available to move electrons is called voltage, which is measured in units called volt. An earthquake is the shaking and trembling that results from the sudden movement of parts of the Earth's crust. The intensity of an earthquake is measured on the Richter scale. An instrument called a seismograph is used to detect and measure earthquake waves. बच्चों, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे.